Okay, so good morning. Today we will discuss our previous assignment, answers of the previous assignment. Few of you have got full marks out of 15 out of 15, okay, but most of you did wrong. Okay, so we will explain and we will see how we get these values, okay. And before that, today I will continue yesterday's lecture. Due to network issue, I couldn't continue yesterday, okay. So today we will start from here. See, today we will learn what? Traffic flow theory. We have learned traffic flow characteristics or the traffic flow parameters. See, there are different characteristics or the parameters which will define a traffic. Okay, we have broadly divided it into macroscopic and microscopic. Now, macroscopic examples are what? Parameters are traffic volume or traffic flow, flow or volume. Okay, traffic flow. Another is traffic density and your traffic speed. Those are the macroscopic. Macro means what? We are okay. Sorry. So macroscopic and microscopic. See, these are the macroscopic. That means we are considering the traffic parameter as a whole or average. We are taking the average values. Okay. So sorry, these are the macroscopic. So these are the macroscopic, okay, and microscopic, corresponding microscopic parameters, okay. For flow, the corresponding micro, that means we are considering the individual vehicle characteristics. So for flow, its corresponding micro will be time headway, okay, and for density, it will be space. Please remember, okay, there are the relationship between this flow and headway and density and spacing. Okay, these are the relationship between macro and micro. Say for example, here you can see, this is the relationship between your time headway versus flow. Flow is indirectly proportional to time headway or vice versa. That means what? Your time headway is the time gap between the two vehicles. Okay, one vehicle will cross a particular section of the road, say for example at time t1. Second vehicle which is following that vehicle, first vehicle, okay, second vehicle will cross that same particular section, say for example at time t equals to t2. So what is the time interval? So t2 minus t1. That means first, say for example, first vehicle will cross that section at 10 am. Another vehicle will cross that section after 2 seconds. That is 10 past 2 seconds. Okay. So the time gap between those two vehicles is known as the time headway. Lesser the time gap, more will be the flow. Flow means what? Number of vehicles crossing that section in a given period of time. Okay. So say for example, there are 10 vehicles following each other. Okay. If the time gap between each vehicles is very less, that means what? The number of vehicles crossing that section in a given period, say for example, in 1 hour, we will get more number of vehicles. Okay. And similarly, when that time gap is very high, that means first vehicle cross the segment at 10 am, another vehicle will cross after 1 minute. So obviously time is same, 1 hour we are collecting data. Okay, so in which case your number of vehicles will be more if the time gap between the two vehicle is 1 second, or if the time gap between the two vehicle is 1 minute. So in which case you will get more number of vehicles, you will get more number of vehicle count, obviously in the when your time gap is very less. Okay, so that's why your Q is indirectly proportional to time headway, flow indirectly proportional to headway, and this is the relationship. Similarly, density is also inversely proportional to your space headway. Okay, density means what? Number of vehicles in a particular stretch of a road.
for example, we are considering 1 kilometer stretch of a road. So in that 1 kilometer stretch, suppose there are 10 vehicles. So the density of that roadway is what? 10 vehicles per kilometer. Okay. So if we draw like this, see. Sorry. Suppose this is 1 kilometer stretch road. Okay. Here we are getting 1 vehicle, 2 vehicle, 3 vehicle, 4 vehicle, okay, 5 vehicles. So total 5 vehicles are here. Okay. Same kilometer road, 1 kilometer road. Okay. Now we are having only 3 vehicles. Say for example like this. Now tell me in which case spacing is more, this or this? In which case spacing is more? Spacing between the vehicle is more. First case, second case. Second case, that means here, see, and where your density is more? Spacing is more in this case. First one is density. Okay, whereas density is less. Okay, see here, spacing is less in this case, so density is more. That means what? Your both these two parameters are what? This microscopic, macroscopic. These are inversely proportional. That's why see K is inversely proportional to S. Okay, and we can get this value also. So we can obtain K by simply 1000 by S, or we can obtain S simply by doing 1000 by K. This is the relationship that we will use. Okay. Now comes, but today's topic is not this one. Today's topic is what? Today's topic is your relationship between the macroscopic parameter, that is traffic density, traffic speed and traffic flow. We have to find the relationship. Okay, so we can explain it with a graph. Graphically, we can explain it very clearly. Okay, so this is your graph. This x-axis will be your density divided by K, and unit is vehicle per kilometer per lane. Okay, in a single lane we are considering. Another is vehicle kilometer per hour, and it is denoted by V. Okay, now see, when density is less, or we can say density is 0. Okay, that means there is no vehicle except you. There is no vehicle in that 1 kilometer stretch of road, or in a roadway there is no vehicle other than your vehicle. That means your density is 0. We are considering density as 0. So in that case, what will be your speed? What will be the tendency of your speed? It will be very high, it will be very less, or it will be 0. What will be your speed? Suppose you are taking a bike, you are riding in a roadway where there is no vehicle. That means there is no interruption, no interaction with the other traffic. You alone are traveling in that roadway. So what will be your tendency? Your speed will be high or less? क्या होगा? स्पीड कैसा होगा? ज्यादा होगा ना कम होगा? If there is no spacing one, speed बेसी spacing, no, not spacing. I'm talking about the density. Okay, spacing is related with density only. Okay, but here see, density means what? Here vehicle per kilometer. Now we are considering no vehicle. Number of vehicle we are counting. Okay, so if there is no vehicle, only you are there, then what will be your speed? It will be very high, right? So for K equals to 0, we can say that our speed will be, suppose this is the maximum speed. So coordinate are what? K0, X0, Y is VF. Okay, so this is the coordinate or the ordinate of this point. Okay, we will get this point in the first case. When K is 0, your V will be Vmax, which is VF, which is your free flow speed. Okay. Now slowly what happens? The number of vehicles in a given stretch of road increases. मतलब कि आसपास में तुम्हारे अगल बगल साइड में सब में जनरली वी आर कंसीडरिंग द लेंथ, तो तुम्हारे सामने और पीछे अगर ये काउंट बढ़ जाएगा, व्हीकल्स आ रहा है, दैट मींस देयर विल बी मोर इंटरप्शन, मोर इंटरेक्शन, राइट? तुम अब अकेले नहीं हो, सो यू कैन नॉट मूव एट द हाई स्पीड. योर स्पीड विल व्हाट? इट विल रिड्यूस और इंक्रीज. तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा? अब धीरे धीरे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहा है, पर्टिकुलर डिक्रीज, राइट? नाउ यू विल गेट कॉशियस कि हमको थोड़ा स्लो डाउन करना है, राइट? तो अब ये क्या हो जाएगा? स्लोली विथ इंक्रीज ऑफ डेंसिटी
योर स्पीड विल स्टार्ट टू रिड्यूस, मतलब ऐसा रिड्यूस होता होता जाएगा। देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, ये v नीचे जाएगा, सो वी आर गेटिंग दिस कोऑर्डिनेट, सिमिलरली दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहा है और स्पीड नीचे गिरा, सो वी आर गेटिंग दिस कोऑर्डिनेट। ओके, सो बोथ ऑफ दीज आर व्हाट नेगेटिवली रिलेटेड, और वी कैन से अगेन इनवर्सली या नेगेटिवली इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। ओके, सो वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग अ नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि एक नेगेटिव स्लोप आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी, मतलब 0 से लेकर अगर ये डेंसिटी मैक्सिमम है इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड, मतलब कि 1 किलोमीटर रास्ते में अगर वहां पे बोलेगा सिर्फ 50 तो व्हीकल ही आ जाएगा, आ सकता है, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, और नॉट कैपेसिटी, वी कैन से दैट इज द मैक्सिमम डेंसिटी, ओके, इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड। 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड में सिर्फ मतलब एकदम पैक टू पैक अगर क्लोजली स्पेस्ड करके, ठीक है, सब लोग जैम कंडीशन में आ जाएगा, वहां पे तुम्हारा मैक्सिमम डेंसिटी को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट इज केजे, विच इज द जैम डेंसिटी। ओके, तो अब जैम कंडीशन में जब होगा तुम्हारा व्हीकल का स्पीड क्या हो जाएगा, तुम जैम, एक रास्ता हो पूरा फ्री फ्लोली तुम जा रहे थे, कोई नहीं है, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है, व्हीकल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो क्या रहा है, अब जैम कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब चढ़ियाल की तरफ जा रहे हैं, तो स्लोली तुम्हारा स्पीड रिड्यूस होते 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 एक कंडीशन आएगा कि तुम्हारा स्पीड एकदम रुक जाएगा, व्हीकल वी हैव टू स्टॉप बिकॉज ऑफ द जैम कंडीशन। ओके, इसीलिए ये वाला कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे kj है, व्हेन k is kj योर स्पीड इज 0, मतलब ये ऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू है kj और y का वैल्यू है 0, तब यहाँ पे ये ऑर्डिनेट मिला। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी वर्सेस स्पीड। ओके, तो ये मेन फंडा इन लोगों ने डिराइव किया है। ओके, और ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्ट्रेट लाइन बोलो, कभी कभी कर्व भी हो सकता है। ओके, इट इज डिफाइंड बाय सेवरल साइंटिस्ट, जो लोगों ने ये सब फॉर्मूला दिया गया है फॉर डिफाइनिंग दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई किसी ने एकदम स्ट्रेट लाइन बोला है, किसी ने कर्व बोलेगा, राइट। तो बहुत सारा मॉडल जनरेट हुआ है, ग्रीनसील मॉडल, ग्रीनबर्ग मॉडल, ये सब है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे ये कल बोले थे हम लोगों ने, ये एक मॉडल, दिस इज कॉल्ड द मॉडल। ओके, मॉडल मतलब सिर्फ वो फिजिकल मॉडल वैसा जैसे तुम लोग करते हो एग्जीबिशन, वैसा नहीं, इसको भी मॉडल बोलते हैं। ओके, जो इक्वेशन डेवलप किया है दैट इज वन काइंड ऑफ मॉडल ओनली। ओके, अब रिलेशन क्या है, स्पीड और डेंसिटी के बीच में जो रिलेशन है, बहुत सारा ट्रायल एरर या एम्पिरिकल मेथड एक्सपेरिमेंट कर करके ये रिलेशन इन लोगों ने डिराइव किया है। वहां पे ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। अब बोला गया है अगेन सी नेगेटिव है, मतलब क्या है, डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, डेंसिटी बढ़ने से ये टर्म बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली ये वाला होल वैल्यू गेट रिड्यूस, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑब्वियसली वी नो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, व्हेन k इज 0, जब डेंसिटी 0 है तब तुम्हारा v विल बी v max। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, ये s अगर वेलोसिटी है, d अगर डेंसिटी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हमको d का वैल्यू 0 पुट करना है। सो इफ वी पुट दिस इनटू 0, सो वी आर गेटिंग 60। ओके, सो योर स्पीड और द मैक्सिमम स्पीड will be the corresponding speed when d is equals to 0. okay, या density is equals to 0 करके देखना कितना आ रहा है, तो आंसर will be 60. okay, 60 minus 0.40 into 0, 60. okay, now अब ये क्या हुआ, ये तो दो पैरामीटर के बीच में रिलेशन, सी दिस इज ओनली 2 पैरामीटर, और एक पैरामीटर कौन सा है बोलो तो, स्पीड का हो गया, डेंसिटी का हो गया, और एक पैरामीटर कौन सा बचा अब, वन मोर मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर, एनीवन, स्पीड, डेंसिटी, और क्या बचा, बोलो बोलो ना तुम लोग। टाइम इज नॉट द मैक्रोस्कोपिक। फंडामेंटल 3 फंडामेंटल मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आर योर ट्रैफिक वॉल्यूम, राइट, या ट्रैफिक फ्लो जिसको बोलते हैं, दूसरा ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी। डेंसिटी और स्पीड का तो रिलेशन हो गया है, अब हमको ट्रैफिक फ्लो के साथ रिलेशन करना है, किसका, ट्रैफिक फ्लो वर्सेस स्पीड एंड ट्रैफिक फ्लो वर्सेस डेंसिटी। ओके, अब ये देखो कौन सा एक्सिस में डेंसिटी है, एक्स एक्सिस में, ठीक है, और वाई एक्सिस में तुम्हारा स्पीड है। तो जब हम लोग फ्लो के साथ रिलेशन ड्रॉ करेंगे, इन दैट केस ये एक्सिस को कांस्टेंट रख दो। ओके,
एक्सिस को कांस्टेंट रखने का मतलब है कि डेंसिटी जिस एक्सिस में है उसी एक्सिस में डेंसिटी रख के तुम्हारा फ्लो वर्सेस डेंसिटी करो, और स्पीड जिस एक्सिस में उसी एक्सिस में स्पीड को रखकर फ्लो को एक्सिस देना है। तो अगर हम बोलेंगे कि तुम्हारा स्पीड वर्सेस फ्लो अगर हम करेंगे, सो इन दैट केस तो स्पीड वर्सेस ये जो है, अगर हम स्पीड वर्सेस फ्लो करेंगे तो स्पीड को हम लोग रखेंगे वाई एक्सिस में, फ्लो को रखेंगे एक्स एक्सिस में। ओके, अगेन इफ वी डिराइव स्पीड वर्सेस डेंसिटी, देन डेंसिटी विल बी इन एक्स एक्सिस, तब तुम्हारा फ्लो विल बी इन वाई एक्सिस। ओके, तो ये जैसे देखो ये हो गया, ये है तुम्हारा फ्लो वर्सेस डेंसिटी। पिछले में क्या था, डेंसिटी एक्स एक्सिस में था तो इसको एक्स एक्सिस में रख दिया, फ्लो को वाई एक्सिस में निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देना है, ठीक है। सपोज व्हेन डेंसिटी इज 0, ठीक है, मतलब कोई तुम अकेले हो, कोई फ्लो नहीं है, ठीक है, तो तब तुम्हारा फ्लो क्या हो जाएगा, बोलो, कोई व्हीकल ही नहीं है तो फ्लो होगा कि नहीं होगा। फ्लो का मतलब क्या है कि कितना व्हीकल्स एक रास्ते को क्रॉस करेगा, एक सेक्शन को क्रॉस करेगा, राइट। तो वहां पे अगर कोई व्हीकल्स ही नहीं है, ये k इज 0, मतलब एक सेक्शन सेगमेंट में, 1 किलोमीटर सेगमेंट रास्ते में देयर इज नो व्हीकल, 0, तो फ्लो क्या है, एक पाइपलाइन लो, पाइपलाइन पूरा खाली है, पानी नहीं है, राइट, तो क्या हो जाएगा, वहां पे पानी बहेगा, फ्लो वहां पे है, कुछ है ही नहीं बहने के लिए, तो क्या बहेगा, सो योर फ्लो विल बी 0। ओके, सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो ये वाला आ गया। ओके, व्हेन k इज 0 q विल बी आल्सो 0, मतलब व्हीकल ही नहीं है तो क्या फ्लो करेगा, तो हम लोग काउंट कहाँ से लेंगे, व्हीकुलर काउंट, ये तो व्हीकल काउंट है ना, फ्लो का मतलब नंबर ऑफ व्हीकल काउंट क्रॉसिंग अ सेगमेंट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स सेगमेंट में है ही नहीं तो क्या क्रॉस करेगा, राइट, सो दिस विल बी आल्सो 0। अब देखो, अब काउंट बढ़ेगा व्हीकल, ये जो डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब क्या है, एक सेगमेंट में नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ता जा रहा है, 1 किलोमीटर स्ट्रेच तुम्हारा नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ता जा रहा है, तो फ्लो क्या करेगा, फ्लो बढ़ेगा ना घटेगा। अब व्हीकल्स आ रहा है मतलब क्या है, तुम्हारा बढ़ना चाहिए, राइट, पहले कुछ व्हीकल नहीं था, अब स्लोली स्लोली व्हीकल एंट्री मार रहा है, तो फ्लो भी हो रहा है, मतलब वी आर गेटिंग द काउंट ऑफ व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो फ्लो भी ये बढ़ेगा, ठीक है, फ्लो भी बढ़ेगा, देखो अब ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, ये स्ट्रेटली नहीं बढ़ेगा, एक पैराबोलिक होगा, ठीक है, क्यों हो रहा है देखो, अब ये बढ़ रहा है तुम्हारा स्लोली स्लोली, 1 किलोमीटर स्ट्रेच रोड में सपोज पहले 2 व्हीकल था, ऑब्वियसली क्यू विल बी 2 व्हीकल पर आवर, अब 1 किलोमीटर रास्ते में सपोज 3 व्हीकल आ रहे तो ऑब्वियसली तुम्हारा 3 व्हीकल्स पर आवर ये हो जाएगा, क्यू भी वही 3 व्हीकल ही क्रॉस करेगा सेगमेंट को, ठीक है। अब ये के बढ़ता जा रहा है, अब स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, ये जैम कंडीशन की तरफ जा रहा है, जैसे चढ़ियाल की तरफ अगर जा रहे हैं लोग, ठीक है, तो चढ़ियाल की तरफ जब जाते हो उससे थोड़े आगे तक एक होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग दैट रोड हम लोग को मिल जाएगा, ये स्लोली जो बढ़ रहा है काउंट बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम में पहुंचेगा, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट अब क्या कर रहा है, अब तुम्हारा कंडीशन डेंसिटी तो बढ़ता ही जा रहा है, राइट, मतलब जैसे जैम कंडीशन में जा रहे हैं हम लोग, 1 किलोमीटर स्ट्रेच में नंबर ऑफ व्हीकल्स स्टैंडिंग 1 by 1, मतलब बैक टू बैक जो खड़ा है वो तुम्हारा नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे फ्लो होगा कि नहीं होगा, पहले ये बोलो। 1 किलोमीटर स्ट्रेच रोड में तुम्हारा व्हीकुलर काउंट बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर हम करेंगे, ठीक है, ये अगर 1 किलोमीटर स्ट्रेच रोड है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फ्लो कंसिडर कर रहे हैं, हमारा एक व्हीकल यहाँ पे आ रहा, पहले 0 था तो ये 0, मतलब पहले इनिशियल 0 था तो क्यू का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक, अब 2 व्हीकल यहाँ पे एंट्री मार रहा है 1 किलोमीटर स्ट्रेच रोड में, तो ये 2 व्हीकल ही जाएगा, तो हम लोग का नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट भी बढ़ रहा है, फिर से 3, अगर 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर सेम ऐसा ही अगर यहाँ पे 3 व्हीकल आ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा डेंसिटी भी बढ़ रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा कि मैक्सिमम हम लोग काउंट ले सकते हैं, सपोज इस वाले स्ट्रेच के लिए हम लोग बोल रहे थे कि मैक्सिमम हम लोग का काउंट है सपोज 10 ठो, ठीक है, ऐसा ऐसा करके 10 ठो व्हीकल्स है यहाँ पे, ठीक है,
तो काउंट भी ऑब्वियसली मैक्सिमम ही मिलेगा हमको, ठीक है। अब इससे ज्यादा अगर हम लोग करेंगे, इससे ज्यादा ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो हो रहा है, ठीक है, इससे अगर और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे और व्हीकल आ रहा है, ठीक है, तो और व्हीकल अगर एंट्री मारेगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये जो पीछे वाले से जो आ रहा है वो फ्लो कर पाएगा। यहाँ पे और व्हीकल हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, और व्हीकल मतलब इसके पीछे भी व्हीकल है, इसके पीछे, इसके यहाँ पे भी व्हीकल है, सब जगह व्हीकल, सामने भी व्हीकल ही व्हीकल है, यहाँ पे भी व्हीकल है, बस है, सपोज बस ऐसा है, ठीक है। ये मैक्सिमम रीच कर गया, मैक्सिमम काउंट हम लोग मिल गए। अब इसके बाद ये गाड़ी आगे बढ़ेगा, देखो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा, इस वाले से ये वाला डेंसिटी बहुत ज्यादा है, राइट, लेकिन फ्लो क्या हो रहा है, गाड़ी के सामने जा रहा है, ये वाला लाइन को क्रॉस कर रहा है, तभी तो हम काउंट मिलेगा, राइट। हमको ये लाइन में जो जो क्रॉस करेगा वो काउंट चाहिए था फॉर फ्लो, फॉर क्यू, फॉर डिटरमाइनिंग द क्यू वैल्यू। बट आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, एक डेंसिटी ज्यादा होने के बाद क्या हो जा रहा है, देखो ये सामने ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पीछे भी गाड़ी, सामने भी गाड़ी है, तो ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, तो हमको काउंट मिलेगा। तो क्रॉस नहीं करेगा, वी विल नॉट डू आवर सर्वे, जब क्रॉस करेगा तभी हम काउंट करेंगे, राइट। अब इस कंडीशन में देखो फ्लो क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखो स्टैग्नेट कंडीशन आ रहा है, स्टैग्नेट मतलब सब गाड़ी क्या है, खड़ा कंडीशन में है, दे आर नॉट मूविंग। अगर मूव भी कर रहा है तो बहुत स्लोली स्लोली, मतलब ये वाला व्हीकल शायद 10 मिनट बाद क्रॉस करेगा इसको, फिर उसके पीछे वाला और 10 मिनट बाद क्रॉस करेगा, तो 1 घंटे में हार्डली 3 व्हीकल ही क्रॉस कर लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 व्हीकल सिर्फ क्रॉस कर रहे, मतलब क्या है तुम्हारा, ये फ्लो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, ओके। आफ्टर सर्टेन डेंसिटी एट मैक्सिमम कैपेसिटी रीच करेगा फ्लो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ता ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा फ्लो विल स्टार्ट टू रिड्यूस, बिकॉज फ्लो मतलब ये मूव ही नहीं कर रहा है, इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है, राइट। पानी खड़ा है, यहाँ पे पानी जम गया है, ये फ्लो ही नहीं कर रहा है, वैसा ही ट्रैफिक भी यहाँ पे जम गया, अब ये फ्लो ही नहीं कर रहा है, ओके। सो ये सामने आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग व्हाट, आवर ये जो मैक्सिमम पहुंच गया, दैट इज द क्यू मैक्स और द कैपेसिटी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, और इसका करस्पॉन्डिंग सपोज डेंसिटी है के नॉट, ठीक है। आफ्टर दिस के नॉट क्या हो रहा है कि ये डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो विल रिड्यूस, तो ये देखो स्लोली स्लोली रिड्यूस होता जा रहा है, ओके। अब यहाँ पे जाके तुम्हारा मैक्सिमम डेंसिटी अगर पहुंच जाएगा के जे, इस वाले पॉइंट में सपोज मैक्सिमम डेंसिटी पहुंच गया, तो मैक्सिमम डेंसिटी पहुंचने पर क्या हो जाएगा बोलो, चढ़ियाल में पूरा जैम कंडीशन है, तो गाड़ी के आगे, गाड़ी तो रुक गया है, उसका वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो मूव ही नहीं कर रहा है मतलब वी आर नॉट गेटिंग द काउंट, तो वी आर गेटिंग व्हाट, 0 नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग दिस सेगमेंट, तो 0 नंबर ऑफ क्रॉसिंग दिस सेगमेंट मतलब क्या है, क्यू विल बी 0, ओके। वैसे यहाँ पे देखो डेंसिटी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम रीच करेगा, यहाँ पे पहुंच के तुम्हारा क्यू मैक्स हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी सपोज के नॉट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहा है, ये इंक्रीज करेगा लेकिन फ्लो विल रिड्यूस, सो ये रिड्यूस हो जा रहा है। अब जब ये मैक्सिमम डेंसिटी जब पहुंचेगा के जे, ठीक है, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू विल बी 0, मतलब फ्लो होगा ही नहीं, ट्रैफिक फ्लो होगा ही नहीं, वो सेगमेंट को क्रॉस करेगा ही नहीं, सो वी विल नॉट गेट द काउंट, सो आवर काउंट इज 0, दैट मींस अगेन योर फ्लो विल बी 0। ये वाला दो केस हो गए, देखो व्हेन k इक्वल्स टू 0 मतलब कोई व्हीकल नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग काउंट, सो q इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे k मैक्सिमम है, बहुत सारा व्हीकल है, लेकिन सामने मूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फ्लो नहीं हो पा रहा है, कोई भी व्हीकल उस सेगमेंट को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ द जैम कंडीशन, सब लोग रुके हुए हैं, सो तुम्हारा फ्लो विल अगेन विल बी 0। सो देखो दो वैल्यू है क्यू का, एक k इक्वल्स टू 0 में है और एक k इक्वल्स टू kj में, ओके, एंड इट इज सिग्निफाइड डिनोटेड बाय अ पैराबोलिक लाइन, ओके। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा फ्लो वर्सेस डेंसिटी का रिलेशन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर है कि नहीं है प्लीज, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तुम लोग को
क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है चढ़ियाल का एग्जाम्पल ले लेके हमको ये आगे बढ़ना है। ओके, चढ़ियाल का एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। सपोज यहाँ से देखो बीबीआईटी के सामने कोई व्हीकल नहीं था, डेंसिटी 0 है, तो वहां पे तुमको नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट भी नहीं मिलेगा, तो 0 है। अब स्लोली स्लोली चढ़ियाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी वैसे स्लोली स्लोली बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा फ्लो मतलब गाड़ी का जो एक रास्ते को क्रॉस कर रहा है वो नंबर ऑफ काउंट्स भी बढ़ता जाएगा, एक मैक्सिमम पहुंच जाएगा कि कितना मैक्सिमम ये लाइन को क्रॉस कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स, दैट इज द मैक्सिमम और द कैपेसिटी। ओके, और कैपेसिटी फ्लो, मैक्सिमम फ्लो और द कैपेसिटी, और उसका करस्पॉन्डिंग अगर हम के लेंगे तो दैट इज के नॉट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स चढ़ियाल। चढ़ियाल की तरफ देखना, 1 किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर बहुत सारा गाड़ी लाइन में ऐसे खड़ा हुआ है। तो क्या हो रहा है, लाइन में खड़ा है मतलब क्या है तुम्हारा, वहां पे हम लोग का वेलोसिटी इज गेटिंग 0, मतलब हम लोग स्टॉप कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो व्हीकल स्टॉप हो जाएगा तो एक सेगमेंट को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, जहां से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं वहां पे हमको रीडिंग ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे अगर रीडिंग नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्लो भी तुम्हारा रिड्यूस होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। कुछ रीडिंग मिलेगा, फिर कुछ रीडिंग करते करते स्लोली जब पूरा एकदम पैक कंडीशन हो जाएगा कि गाड़ी अब मूव ही नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा अगेन योर फ्लो भी 0। ओके, इसको बोलते हैं तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक फ्लो एंड डेंसिटी। अब देखो ये वाला हाफ पोर्शन एक रीजाइन को सिग्निफाई करता है और ये वाला हाफ पोर्शन अनदर रीजाइन को सिग्निफाई करता है। नाउ टेल मी व्हिच विल बी द अनकंजेस्टेड रीजाइन एंड व्हिच विल बी द कंजेस्टेड रीजाइन, बोलो। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो कौन सा सेगमेंट तुम्हारा कंजेस्टेड होगा, कौन सा अनकंजेस्टेड होगा? ये वाला रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन इट विल बी कंजेस्टेड वाला रीजन ना कि अनकंजेस्टेड? हेलो हेलो, बोलो पुलक, कौशिक, सिमोन, एटलीस्ट ये वाला बोलो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो रीजन है, ये जो ये डैश डैश के इस तरफ, ठीक है, ये वाला रीजन इट विल बी कंजेस्टेड कि अनकंजेस्टेड रीजन? कंजेस्टेड बिकॉज इट इज टुवर्ड्स जैम डेंसिटी, इसको बोलते हैं कंजेस्टेड, एंड दिस इज अनकंजेस्टेड। ओके, ये अनकंजेस्टेड है, दिस इज कंजेस्टेड रीजन, ठीक है। ये हम क्यों पढ़, बिकॉज तुम लोग का मतलब कुछ एग्जाम्स वगैरह में ये सब आता है यहाँ से। ओके, ये कॉन्सेप्चुअल है। अब बचा क्या तुम्हारा, रिलेशनशिप बिटवीन योर डेंसिटी एंड, सॉरी डेंसिटी बोले, फ्लो एंड स्पीड। स्पीड कौन सा एक्सिस में था पिछले वाले में, स्पीड वाज इन वाई एक्सिस। ओके, सो अब दूसरे वाले रिलेशन में क्या होगा, स्पीड यहीं पे होगा, फ्लो को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में, ठीक है। अब तुम बोलो, जब तुम्हारा क्या बोलते हैं, कोई व्हीकल नहीं है, Q इज 0 मतलब कोई भी व्हीकल नहीं है, तुम अकेले हो। ओके, अगेन यू आर सिंगल, वहां पे कोई है नहीं, तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होना चाहेगा, राइट, विल मूव हाई स्पीड, ठीक है। अब फ्लो बढ़ रहा है मतलब क्या, नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्शन रहा है, ठीक है। इस तरफ अगर जाएंगे, इंटरेक्शंस बढ़ रहा है तो स्पीड कम होता जाएगा, वैसे जैम और उसकी तरह, ठीक है। तो ये रिड्यूस होगा। अब ये देखो रिड्यूस हो रहा है, करते करते हम लोग क्या बोले थे, एक मैक्सिमम कैपेसिटी में, मतलब पहले 10 व्हीकल क्रॉस किया, फिर तुम्हारा 15 व्हीकल क्रॉस किया, वैसे करते करते देखेंगे कि 1000 व्हीकल 1 आवर में क्रॉस कर रहा है। सो दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, कि एक रास्ते का मैक्सिमम कैपेसिटी है कितना, 100,000 व्हीकल्स विल क्रॉस दैट पर्टिकुलर सेक्शन इन 1 आवर पीरियड। तो सपोज दैट इज योर मैक्सिमम, ये अगर मैक्सिमम है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो अब तुम्हारा हो जाएगा कि स्पीड क्या हो जा रहा है तुम्हारा, रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरफ से क्या हुआ, ये क्या कंटिन्यू जाएगा ना कि कुछ होगा इसमें चेंजेस, तुम खुद ही बोलो। ये तो होगा तुम्हारा फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है। फ्लो बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटरिंग दैट सेक्शन, इंटरेक्शंस बढ़ेगा तो स्पीड ऑब्वियसली, ठीक है। तुम्हारा इसके हेलो मैम, সাউন্ডটা প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম। আবার হুম। तो ये वाला जो है दिस इज द मैक्सिमम, इसका करस्पॉन्डिंग Q वैल्यू इज द
q max, okay, and its corresponding velocity is the suppose v naught. अब क्या होगा, वेलोसिटी ऐसे रिड्यूस कर रहा है, मतलब क्या है, उस सेक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, सो आवर नंबर ऑफ व्हीकल्स विल स्टार्ट टू गेट रिड्यूस, राइट. सो नंबर ऑफ व्हीकल्स रिड्यूस हो जाएगा तो मतलब ये वाला ऐसा होना स्टार्ट करेगा, ओके. अब यहाँ पे आके देखो अगेन क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, फिर से नॉट इज जीरो. यहाँ पे देखो दो केस है क्यू का, एक है कि कोई व्हीकल नहीं है, ठीक है, तब इसीलिए कोई फ्लो हम लोग को काउंट नहीं मिलेगा, एक ये है. और एक दूसरा है कि बहुत सारा कैपेसिटी से बहुत ज्यादा व्हीकल्स है वहां पे, ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, या स्पीड, व्हीकल का स्पीड जीरो है, मतलब क्या है कि एक व्हीकल सामने मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो वो काउंट हम नहीं करेंगे, राइट. तो एक व्हीकल मूव नहीं कर पा रहा है तो वो सेगमेंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा. से फॉर एग्जांपल ऐसे अगर करेंगे, ये सेक्शन में है, ठीक है, ये वाला व्हीकल यहाँ पे खड़ा था, ये वाला व्हीकल यहाँ पे खड़ा था, इसका स्पीड जीरो है, तो ये क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है. तो ये क्रॉस नहीं करेगा तो ये भी नहीं क्रॉस कर पाएगा, ये वाला भी उसके पीछे भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है. तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग जीरो नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग सेगमेंट, मतलब यहाँ पे बहुत सारा व्हीकल है लेकिन फिर भी ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वी आर नॉट गेटिंग दी काउंट, सो नंबर इज जीरो, ओके. तो इसीलिए तुम्हारा Q तुम्हारा यहाँ पे जीरो है. ये है सेकेंड केस, मतलब व्हीकल्स है लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है. ये लोग रुके हुए हैं, सो इट इज नॉट क्रॉसिंग, तो ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमको काउंट भी नहीं मिल रहा है, काउंट इज जीरो, तो Q भी जीरो है. ये है सेकेंड केस जो हम बोले थे, when v equals to zero, v equals to zero, ये वाला सेकंड केस है. दूसरा जो बोले थे कि तुम्हारा सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तुम अकेले हो और कोई व्हीकल नहीं है, होने से भी बहुत पीछे है शायद, ठीक है, तब भी हमको यहाँ पे जो नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग क्या मिल रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, राइट. मतलब तुम्हारा क्या है कि काउंट व्हीकल्स है लेकिन बहुत बहुत दूर दूर में है, मतलब एक एक घंटे के बाद आएगा व्हीकल्स यहाँ पे क्रॉस करेगा, ठीक है. तो हम लोग का काउंट भी, हम लोग का तब भी क्या है, काउंट हम लोग का जीरो ही है. सो आवर इन दिस केस आल्सो इट इज जीरो. देखो दो केस है, एक है कि बहुत एकदम क्लोजली पैक्ड है तब भी तुम्हारा काउंट नहीं मिल रहा है, और बहुत हाई स्पेस्ड है, मतलब बहुत दूर दूर स्पेस्ड है, फिर भी हमको काउंट नहीं मिल रहा है. सो दोनों ही केस है. ये क्या है, ये है अनकंजेस्टेड, दिस इज कंजेस्टेड, ठीक है. तो ये वाला केस कहाँ पे आ रहा है, ये वाला केस यहाँ पे इस रीजन पे आ रहा है, ठीक है. जो देखो बहुत दूर दूर, ये वाला फर्स्ट व्हीकल है, ठीक है, ये सेकेंड व्हीकल है, ये थर्ड व्हीकल है, बहुत दूर दूर है, स्पार्सली स्पेस्ड है, ओके. सो दिस इज अनकंजेस्टेड रीजन. और ये वाला क्या है, देखो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, सो दिस इज योर कंजेस्टेड, मतलब ये वाला है रीजन, ठीक है. तो ये है अनकंजेस्टेड रीजन, ये है कंजेस्टेड रीजन. इसीलिए देखो Q इक्वल्स टू जीरो में भी दो केस है स्पीड का, एक हाई स्पीड से जा रहा है और एक तुम्हारा v इज जीरो है. सेम जैम डेंसिटी का जैसा था वैसा, ये कंजेस्टेड में है, जैम कंजेस्टेड या kj में है, ये वाला k इक्वल्स टू जीरो में है, अप्रोक्सीमेटली k इक्वल्स टू जीरो में, ओके. तो इस वाले केस का अगर हम ड्राइंग करेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस. देखो तो ऐसे ड्रॉ किया, तो ये वाला है तुम्हारा अनकंजेस्टेड और ये वाला है कंजेस्टेड रीजन, ओके. अब ये तो सेपरेटली हो गया रिलेशन. नाउ अब हम लोग को बोलेगा, दे विल आस्क यू टू ड्रॉ द रिलेशनशिप और ड्रॉ द फंडामेंटल ट्रैफिक फ्लो डायग्राम. दिस इज द फंडामेंटल ट्रैफिक फ्लो डायग्राम. तीनों को एक साथ कैसे ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे, फर्स्ट तुम स्पीड वर्सेस डेंसिटी ड्रॉ कर लो, वी नो, ओके. फिर उसके बाद देखो इसको सेम ग्राफ का स्केल इधर करना है, ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इज इन एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस में रख दो, फ्लो को इस तरफ, सॉरी वाई एक्सिस में रख दो, फ्लो को इस तरफ रख दो, ओके. और डेंसिटी को स्पीड, फ्लो वर्सेस डेंसिटी में क्या करेंगे, डेंसिटी इज इन एक्स एक्सिस इन दिस केस, यहाँ पे भी नीचे कर देना है और यहाँ पे फ्लो हमको दे देना है, ओके. एंड दिस वन वी नो कि इन लोग का रिलेशन है नेगेटिवली, क्या बोले, प्रोपोर्शनल है, ओके. सो k इक्वल्स टू जीरो में v विल बी vf, k इक्वल्स टू j में v विल बी v जीरो वैल्यू, ओके. जैम कंडीशन में जीरो हो जाएगा स्पीड, ठीक है.
तो देखो इसका भी हम लोग जानते हैं, ऐसा वाला हो जाएगा डायग्राम, जस्ट वी हैव ड्रॉन। ओके, तो VF का करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा, ये वाला जो VF, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, इसका करस्पॉन्डिंग फ्लो इज व्हाट, ये वाला ऑर्डिनेट का करस्पॉन्डिंग फ्लो वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगा दैट विल गिव अस व्हाट, हमको वहां से मैक्सिमम फ्लो, ये तो मैक्सिमम फ्लो देखो इस तरफ मैक्सिमम है ये वाला फ्लो। सो दिस मैक्सिमम फ्लो इज नथिंग बट द क्यू मैक्स और द कैपेसिटी भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ओके, और इसका करस्पॉन्डिंग अगर V नॉट है तो ये जाएगा सीधा यहाँ पे, दिस इज द V नॉट, ठीक है। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज व्हाट, अगेन योर फ्लो वर्स, ठीक है। ये कंजेस्ट শুনতে পাচ্ছি না ম্যাম। हेलो, শুনতে পাচ্ছ? हेलो, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলুন। तो हाउ टू ड्रॉ, इसका करस्पॉन्डिंग VF यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, लाइक दिस वी विल ड्रॉ। ओके, दिस इज द Q मैक्स एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग V नॉट, और इसका भी ये V नॉट, ये कंजेस्टेड अनकंजेस्टेड, दिस इज कंजेस्टेड। अब दूसरा क्या करना है, सेम ऐसे प्लॉट कर दो यहाँ पे, ये वाला तो हम लोगों ने देखा है। ये जो लाइन होगा इसको ड्रॉ करके दिस विल गिव यू द KJ। देखो ये डेंसिटी है तो KJ यहाँ तक है। ओके, तो जब मैक्सिमम डेंसिटी होगा मतलब गाड़ी सामने बढ़ेगा ही नहीं, वेलोसिटी 0 है तो विल नॉट गेट द काउंट, सो Q विल बी 0। ओके, और इसका जो मैक्सिमम है Q, ये वाला जो मैक्सिमम Q, उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगा दैट इज द कैपेसिटी, एंड इसका करस्पॉन्डिंग है सपोज K नॉट, करस्पॉन्डिंग डेंसिटी इज K नॉट, उसको हम लोग बढ़ाएंगे यहाँ पे और इम्पोज कर, दिस इज द K नॉट। ये है तुम्हारा ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। अब नाउ कम्स योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, Q डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फ्लो इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू, ये है फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रैफिक फ्लो पैरामीटर्स। ओके, अब तुमको Q मैक्स अगर पूछेगा तो क्या करना है हमको, V नॉट इंटू K नॉट करना है। देखो Q मैक्स का करस्पॉन्डिंग V है V नॉट, Q मैक्स का करस्पॉन्डिंग K है K नॉट। ओके, इन मैक्सिमम केसेस क्या हो जाता है, ये K नॉट विल बी KJ/2, देखो ये हाफ में हो जाएगा, एंड V नॉट विल बी VF/2। अगर ये पूरा VF है सो दिस विल बी VF/2। ओके, सो KJ/2 VF/2। तो ये वाला भी तुम लोग को MCQs में आ सकता है, पूछ सकता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे निकालना है। इफ यू नो द KJ, इफ यू नो द VF, देन दिस इज द फॉर्मूला। आई थिंक क्लियर है, राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही तुम्हारा, सॉरी, दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। ओके, ठीक है ना? एनी डाउट? एनी डाउट? না ম্যাম ঠিক আছে। ओके, सो लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। देखो इसका आंसर कितना है, 52.5। ओके, मीटर गॉज का, अगर ब्रॉड गॉज बोलते तो 70/8। ओके, दूसरा क्या है, ट्रैफिक, ये जो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम अभी हम किए थे डेंसिटी इनटू स्पीड। तो दिस इज योर आंसर, डेंसिटी इनटू स्पीड। ओके, नॉर्मल मैक्सिमम कांट परमिसिबल इन मीटर गज, मेनली मीटर गज बोलो, नैरो गज अगर याद नहीं रहता तो क्या करना है, 1/10 ऑफ द गॉज डिस्टेंस, ठीक है। मीटर गॉज का कितना होगा गॉज वैल्यू, 1 मीटर, 1 मीटर, तो उसका 1/10 है 1000, राइट? सॉरी, हाँ 100, तो 100 के आसपास में यहाँ पे एक्चुअली 100 होना चाहिए था, तो योर आंसर विल बी 90। ओके, सो 100 इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन है तो 90 कर दो। सबसोनिक का क्या हो जाएगा, ये वाला सुपरसोनिक का कितना है, सबसोनिक का कितना है,
एनीवन जिन लोगों ने किया है? 180 ना 120? मिनिमम टर्निंग रेडियस 120. 120. Okay. Now the runway orientation is made obviously against the wind direction ही होना चाहिए, तभी तो तुमको अपलिफ्ट मिलेगा या रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट? हमको मिनिमम अपना रनवे लेंथ रिड्यूस करना है, इसीलिए मिनिमम करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो उठने के लिए अपलिफ्ट के लिए अगेंस्ट वाला विंड चाहिए, हेड विंड, और जब रुकना है तब भी हेड विंड चाहिए, दैट इज अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन। द कंप्लीट सिग्नल टाइमिंग, अभी हम बोले थे कि सिग्नल टाइमिंग क्या क्या रहता है, रेड रहता है, येलो रहता है, ग्रीन, सो ऑल। ओके, रेल इज डेजिग्नेटेड बाय वेट पर यूनिट लेंथ, ऐसे डेजिग्नेट होता है। ओके, रेलवे लेंथ, इसका फॉर्मूला क्या था देखो, रनवे लेंथ आफ्टर करेक्टिंग फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर। देखो फर्स्ट में कौन सा करेक्शन होता है, फर्स्ट वी हैव टू डू करेक्शन फॉर एलिवेशन, देन वी विल गो आफ्टर डूइंग करेक्शन फॉर एलिवेशन, लेंथ बढ़ा, ठीक है, देन वी विल गो फॉर दी करेक्शन फॉर टेम्परेचर, उससे भी फिर लेंथ बढ़ेगा, आफ्टर दैट वी विल गो শোনা যাচ্ছে না ম্যাম। for correction for elevation and temperature it is already done। हेलो, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है? কেটে চলে যাচ্ছে মাঝে এখনো? হ্যালো, মাঝে মাঝে ম্যাম। মাঝে মাঝে, এখন ঠিক আছে তো? ঠিক আছে ম্যাম। तो we have to do correction on this value only because this is the final value for elevation and temperature correction। तो इसके लिए ये वाला देखो आ गया, हाँ, सी दिस इज द फॉर्मूला कि कितना है, कितना रेट में बढ़ेगा, 20% फॉर एवरी 1 डिग्री 1% ऑफ इफेक्टिव ग्रेडियंट। क्वेश्चन में कितना परसेंटेज बोला है, 0.5% बोला है, तो 1% के लिए 20% हमको बढ़ा देना है लेंथ को, ठीक है, तो 0.5 के लिए ऑब्वियसली 10% बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 10% कितना है, 2800 का 10% कितना होगा, $280 होगा, राइट? 2800 का 10% विल बी 280, सो वी हैव टू increase this length by 280, so 280 plus 2800 is giving us 3080, so your answer is 3080। किसी किसी ने ये वाला दिया है, ओके। नाउ देखो इसमें क्या है, ये अगर बड़ा करेंगे तो ट्रैफिक इन इंटरस्टेट, दिस वन इज ऑब्जर्व टू हैव स्पेसिंग, ये दिया है, हेडवे ये दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी स्पीड। तो हेडवे, टाइम हेडवे, सॉरी स्पेस हेडवे ये है, स्पेसिंग ये है, हेडवे ये है, तो स्पेसिंग से हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेगा, ना फ्लो मिलेगा, ना कि स्पीड मिलेगा। इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिंग, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ स्पेसिंग, स्पेसिंग और किस चीज का, कौन सा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर का ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, स्पेसिंग के साथ कौन सा मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर रिलेटेड है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या था, 1000 बाय स्पेसिंग, ठीक है। और हेडवे या टाइम हेडवे के साथ क्या था, क्यू मतलब फ्लो, ओके, या वॉल्यूम, फ्लो इक्वल्स टू 3600 बाय हेडवे, ओके। सो तुमको हेडवे पता है तो फ्लो मिल जाएगा, तुमको स्पेसिंग पता है तो के मिल जाएगा, एंड अगेन वी नो बाय द फंडामेंटल ट्रैफिक पैरामीटर रिलेशंस क्यू इक्वल्स टू क्या है, ई इनटू के। तुमको के पता है, तुमको क्यू पता है, तो कैलकुलेट वी। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, के का वैल्यू है तुम्हारा 1000 बाई 27, तो ये आ रहा है 37। तो यहाँ पे देखो 37, यूनिट कौन सा होगा, के का यूनिट विल बी व्हीकल पर किलोमीटर, ओके, यूनिट विल बी व्हीकल पर किलोमीटर, और इसका यूनिट विल बी व्हीकल पर आवर, ओके। तो देखो 37 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पे 37, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ये ऑप्शन बी और सी में से कोई एक होगा, ठीक है। अब पहले क्यू निकालते हैं, सो के इज कमिंग आउट टू बी तुम्हारा 37, ये व्हीकल पर किलोमीटर, और ये आ रहा है 3600 बाई एच इज 2 1800, तो ये आ रहा है तुम्हारा इज कमिंग आउट टू बी 1800।
तो 1800 व्हीकल पर आवर, ठीक है। तो अब देखो 1800 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन 37 यहाँ पे है, तो दिस इज योर राइट आंसर। टैली कर सकते हो ये दोनों का, मतलब q डिवाइडेड बाय दिस विल कम दिस वैल्यू। ओके, अब दूसरा क्या था तुम्हारा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड। इसके लिए तुमको करना है, अच्छा यहीं पर ही देख लेते हैं, टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड का फॉर्मूला देखना है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड का, ठीक है। तो टाइम मीन स्पीड क्या है? एवरेज ऑफ ऑल द व्हीकल, ऐसे समेशन बाई n, और इसका ये वाला फॉर्मूला मतलब 1/vi का समेशन, इसको n से डिवाइड कर देना है। Okay, so if we do this, we will get this formula. पहले वेलोसिटी निकाल लो सबका, ये वेलोसिटी v1 v2 v3, ठीक है। तो फॉर्मूला में बिठा दो, सबका समेशन ये है, so this divided by n is the number of observation 6, so this is your 303.7 by 6 is giving us 50.6। तो ये है तुम्हारा TMS, ये जो वैल्यू है TMS, और SMS का फॉर्मूला ये है, मतलब 1/55.6 प्लस 1/50 प्लस 1 ये करके उसको समेशन करके उसको n से मतलब 6 से डिवाइड कर दोगे, सो वी आर गेटिंग SMS एस, देखो कितना आ रहा है 50.4, ठीक है, वही आंसर है, सेम आंसर। सो 50.6 एंड 50.4। ओके, और यहाँ पे और एक ध्यान देना है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्पेस मीन स्पीड ज्यादा है ना टीएमएस ज्यादा है, तो मेनली योर टीएमएस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन दी एसएमएस वैल्यू। ओके, अब ये वाला देखो, पीक आवर फैक्टर, ठीक है। पीक आवर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? पीक आवर फैक्टर का फॉर्मूला है, अच्छा যারা করেছো তোমরা কি করে করছো তো एकदम, तो वो सेम ऐसा ही अगर दिया गया है डाटा, ठीक है। तो पीक आवर फैक्टर का फॉर्मूला है ये वाला और ये वाला, ठीक है। V इज द आवरली वॉल्यूम, मतलब एक घंटे में कितना क्रॉस करेगा एक सेक्शन को। देखो 15 मिनट में इतना व्हीकल क्रॉस किया, नेक्स्ट 15 मिनट में इतना व्हीकल क्रॉस किया, थर्ड 15 में इतना, फोर्थ में इतना, सो टोटल 15 करके कितना है 60 मिनट्स, मतलब एक घंटे का टोटल काउंट कितना है 4200, ये यहाँ पे दिखेगा 4200। ओके, और ये कौन सा यहाँ पे कौन सा होगा? डिवाइड बाय 4 इंटू इनसे जो भी मैक्सिमम 15 काउंट 15 मिनट का जो मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली ये वाला मैक्सिमम है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला 1200। ओके, सो इट इज गेटिंग अस 0.875। कभी कभी हो सकता है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो दिख सकता है, ऐसे रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। मतलब 15 मिनट में 1000 गया तो 60 मिनट में कितना गया? इक्विवेलेंट आवरली फ्लो 4000। ऑब्वियसली 15 मिनट में 1000 जाएगा तो 60 मिनट में इक्विवेलेंट कितना जाएगा? 4000। कैसे? 1000/15 इंटू 60 यूनिटरी मेथड। ओके, सिमिलरली इसका है 440, ठीक है, इसका है 480, 360। यहाँ पे क्या करना है? वॉल्यूम 4200 बिठेगा और मैक्सिमम रेट ऑफ वर्क, इसमें से जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे बिठना चाहिए, तो 480। तो गिविंग द सेम वैल्यू, इधर ये या ये, इसके लिए सिर्फ ये वाला डाटा चाहिए, इसके लिए ये करके लगाना है। ओके, अब आता है तुम्हारा और क्वेश्चन है, सो आंसर विल बी 875। ये वाला आंसर कितना होगा? देखो नो पीएच कितना है? पीएचएफ इज इक्वल्स टू आवरली वॉल्यूम बाय 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम 15 मिनट वॉल्यूम। अब इससे VM15 कौन सा है बोलो? इज द वैल्यू ऑफ VM15, इससे in this case is the value of VM15। हेलो हेलो, सुनते हो कि? इसमें से मैक्सिमम VM15 है वाला। ओके, दिस इज द VM15, तो ये हमारा यहाँ पे, एंड V इज टोटल आवरली वॉल्यूम, मतलब ये फर्स्ट 15 में इतना है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है, तो टोटल 8-15 मिनट मिलाकर होगा 60 मिनट, तो 1 आवर टोटल कितना आया? सो 1 आवर में कितना आना चाहिए? 1000 प्लस 1100 प्लस
100 plus 1200 plus 1000, टोटल है तुम्हारा 4300। तो ये वाला लिखेगा यहाँ पे। सो योर आंसर विल बी 4300 डिवाइडेड बाय 4 into 1200। ओके, तो करके आ रहा है हम लोग का 0.895। so this will be your right answer. Okay, I think those who have solved the problem, they have I think done the problem। ऐसे आंसर नहीं दिया होगा, ठीक है। और those who have not done, please follow this one। okay, अब देखो, I will give you an assignment based on the 702। okay, तो तुम लोग वो वाला सॉल्व करके रखना है। नो नीड टू सबमिट, बट यू हैव टू गो थ्रू इट फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम। ओके, ये वाला सॉल्व करना है। और आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व नहीं, तुमको मतलब डिस्कस करेंगे इन टुमारोज क्लास। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करेंगे।